آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ، جس کا عنوان ہے تعلیم کی راہوں کے مسافر، اور اس کی رائٹر قدسیہ بنت رفیق شیخ ہے۔ آفاق، امی کی آواز وہ سن سکتا تھا، لیکن انسنی کر گیا اور اپنی بیاض پر مزید جھک گیا۔ وہ فرش پر اپنی کتابیں اور بیاضیں پھیلائے دو زانوں بیٹھا تھا اور پوری طرح بیاض پر جھکا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس کا اسکول بیگ رکھا تھا۔ اطراف میں نیلے، سیاہ اور سرخ پین کے ساتھ پینسل، ربر، شارپنر، رولر اور کمپاس باکس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ آفاق، امی اس کے قریب آئی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں؟ کیا ہوا امی؟ اس نے مصروف سے انداز میں پین سے بیاض پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اور کتنی دیر لکھو گے؟ جب سے اسکول سے آئے ہو ہوم ورک ہی کر رہے ہو، نہ یونیفارم چینج کیا نہ کھانا کھایا۔ چلو اٹھو، شاباش، پہلے منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھاؤ، باقی ہوم ورک بعد میں کر لینا۔ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیسے بھوک نہیں ہے؟ روزانہ تو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی کھانے کا حکم جاری کرتے ہو۔ مجھے بہت لکھنا ہے ابھی، یہ میں ورڈس میننگ لکھ رہا ہوں، اس کے بعد پوری ورک بک بھی کمپلیٹ کرنی ہے۔ ہاں تو کر لینا ورک بک کمپلیٹ، پہلے کھانا تو کھا لو، فریش ہو کر پھر سے ورک بک لے کر بیٹھ جانا۔ صبح سے کھانا نہیں کھایا تم نے، لکھنے کے لیے انرجی بھی تو چاہیے نا۔ نہیں امی، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اتنا بھی ہوم ورک کو سر پر سوار نہیں کر لیتے بیٹا، ٹھہرو ذرا، میں تمہارے ٹیچر سے بات کرتی ہوں۔ اتنا ہوم ورک دیتے ہیں بچوں کو؟ آخری فقرہ انہوں نے آہستہ سے کہا، اتنا ہلکا کہ آفاق سن نہ سکے۔ یہ سرفراز بڈھے کا ہے امی، اگر ایک بھی پیج باقی رہا نا تو مجھے بہت ماریں گے۔ استغفر اللہ آفاق، یہ کیا بات کہی ہے تم نے؟ امی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ اس طرح بات کرتے ہیں اپنے ٹیچر کے بارے میں؟ امی، میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے لکھ لکھ کر۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی امی کو دکھائے۔ ہتھیلی اور انگلیوں پر پین کی سیاہ، سرخ اور نیلی لکیریں بن گئی تھیں۔ دیکھیں ذرا، انہیں پھر بھی رحم نہیں آتا، اتنی زور سے مارتے ہیں، کلاس کے سارے بچے انہیں سرفراز بڈھا ہی کہتے ہیں۔ آفاق، امی حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے عمر نے اپنی ورک بک کمپلیٹ نہیں کی تو سرفراز سر نے اسے اپنے موٹے ڈنڈے سے اتنا مارا، بیچارہ رو رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا اس کو مار کھاتا دیکھ کر میں نے اپنی باری آنے تک جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیا، ورنہ میری بھی خوب دھلائی ہونی تھی۔ کہتے ہوئے آفاق کی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات قابل دید تھے۔ اور پتہ ہے امی، اس دن سر نے ہمیں اتنا ہوم ورک دیا تھا، کہا تھا کہ ابھی تک جتنا پڑھایا ہوا ہے اتنا پورا ورک بک میں لکھ کر لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سزا دے دی، پرسوں وہ گاڑی سے گر گئے۔ اچھا ہوا، بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور وہ اسکول نہیں آئے تو سب بچے بہت خوش ہو رہے تھے۔ آج بھی نہیں آئے تھے، لیکن اب کل وہ ضرور آئیں گے اور ورک بک بھی چیک کریں گے، اس لیے آج ہمیں پورا کر لینا ہے۔ گرے بھی تو انہیں احساس نہیں ہوگا، پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سرفراز بڈھا، آفاق بڑبڑایا۔ آفاق، امی نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے ابو بھی تمہیں کبھی مارتے ہیں تو کیا تم انہیں بھی اس طرح بڈھا کہتے ہو؟ امی ڈانٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بولو، آفاق نے جواب نہیں دیا۔ آفاق، تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، آنے دو تمہارے ابو کو، بتاتی ہوں انہیں تمہاری بدتمیزی، امی نے سختی سے کہا۔ جو بچے اپنے ٹیچرز کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا تھا انہیں کہ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے ہوم ورک نہیں کیا، پھر بھی وہ مارتے ہیں، چھڑی سے مارتے ہیں تو میرے ہاتھ لال لال ہو جاتے ہیں۔ وہ بلند آواز میں غصے سے کہہ رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب تو میں تمہارے ابو سے تمہاری شکایت کروں گی ہی۔ امی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کا بیٹا اتنا بدتمیز کب سے ہو گیا تھا؟ اللہ اللہ، اتنی بے ادبی! آفاق بیٹا، وہ تمہارے ٹیچر ہیں اور ٹیچر کی عزت کرنی چاہیے۔ آفاق منہ پھلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، وہ اتنی محنت سے تمہیں پڑھاتے ہیں، کلاس کے تمام بچوں کو، مختلف مزاج کے بچوں کو ایک ساتھ برابر اہمیت دیتے ہوئے درس دینا، کوئی چیز سیکھ جانے تک سکھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہے آفاق، ہر بچہ الگ مزاج کا ہوتا ہے، سب کے مزاجوں کو سمجھتے ہوئے انہیں بالکل اسی طرح کا پروٹوکول دینا، ان کے مزاجوں کو برداشت کرتے ہوئے ان کی تربیت کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ والدین اور اساتذہ یہ عظیم کام انجام دیتے ہیں،
हमें उनकी कदर करनी चाहिए बेटा, अम्मी नरमी से कह रही थी। हमारे दौर में तो ये होता था कि हम तो अपने असातिज़ा के घरों के काम भी किया करते थे, हालांकि ये फर्ज नहीं है, लेकिन इस दौर में उस्ताद का रुआब, दबदबा, इज्जत व एहतराम इतना होता था कि सब्जी तरकारी लानी हो या सौदा सल्फ, जरूरत पड़ने पर उस्ताद के घर वो भी पहुंचा दिया करते थे वो भी दिन की खिदमत उस्ताद के अवस दिल चाहता था हदिये दिल पेश कीजिए। लेकिन अब जमाना बदल गया है। उस्ताद अपने शागिर्दों से अपने जाती काम नहीं कहते, फिर भी शागिर्द इज्जत व एहतराम देने में बखील है। अम्मी लेकिन वो बहुत जोर से मारते हैं, ये देखें मेरी हथेली लाल लाल हो चुकी है। आफाक ने अपनी सुर्ख हथेली फिर से दिखाई। आफाक, उस्ताद तुम्हारे अपने लिए मारते हैं, तुम्हारे कुछ ना सीखने से या होमवर्क न करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर तुम्हारा सीखना, तुम्हारी काबिलियत इन्हें मकसूद न होती तो वो तुम्हें अपने हाल पर छोड़ देते, कभी न मारते न डांटते। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, बेरोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। उनमें सिर्फ सरफराज सर ही नहीं, नबीला सर भी इतने ही स्ट्रिक्ट हैं, वो भी इतने जोर से डांटते हैं, क्लास में किसी ने थोड़ी भी शरारत की तो मुर्गा बना देते हैं। नबीला सर? अम्मी के पूछने पर आफाक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उनका नाम नबील है, लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर जाते हैं हम उन्हें नबीला सर कहते हैं। हम उनके पीछे उन्हें चिढ़ाते भी हैं। आफाक, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा बेटा इतना बिगड़ गया है। असातिज़ा को बुरे अलकाब या गलत नामों से पुकारना अच्छी बात नहीं है। जो अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। अम्मी उसे समझा रही थी। तुम्हें मालूम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से मौलिम बनाकर भेजे गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दर्स दे रहे होते तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बगौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समात फरमा रहे होते और इस तरह बैठते गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। यानी जब वो एक स्टूडेंट की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ फरमा होते तो उनके सर और निगाहें झुकी हुई होती। ये था एहतराम। आफाक बगौर सुन रहा था। अम्मी ने एक और वाकया इसके गोश गुजार करना चाहा। खलीफा हारून रशीद के दरबार में जब कोई आलिम तशरीफ लाते तो उनकी ताजीम में फौरन खड़े हो जाते। एक दिन दरबारियों ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, इस तरह रुआब सल्तनत चाहता है। हारून रशीद ने जवाब दिया कि अगर उलमाए दीन की ताजीम से रुआब सल्तनत जाता है तो जाए, फिर ये जाने ही के ही काबिल है। अम्मी को सुनते हुए आफाक ने दीवार से पुष्ट टिका दी। अम्मी ने अपनी बात जारी रखी। इमाम बुरहानुद्दीन जरनोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक तालिब इल्म उस वक्त तक इल्म हासिल नहीं कर सकता और ना ही उससे नफा उठा सकता है जब तक कि वो इल्म, अहले इल्म और अपने उस्ताद की ताजीम व तौक़ीर न करता हो। मैं तुम्हें एक वाक़या भी सुनाती हूँ। एक दफ़ा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक बड़े आलिम दीन थे, एक नमाज जनाजा अदा करके फारिग हुए और सवारी पर सवार होना चाहते थे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और सवारी की रकात थाम ली। ज़ैद बिन साबित ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, आप ऐसा न करें। इब्ने अब्बास ने फरमाया, जी नहीं, मैं ये रिकाब जरूर पकड़ूंगा, क्योंकि उलमा और बड़ों का ये हक है कि उनसे ऐसा ही बर्ताव किया जाए। अम्मी ने उसकी बिखरी चीजें समेटते हुए कहा, ये अदब होता है बड़ों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उन्होंने भी उस्ताद की इज्जत व तकरीम की मिसालें पेश की। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने स्टूडेंट्स को मारते थे? एक लख्त आफाक ने इस्तिफसार किया। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नहीं मारते थे, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स शरारत ही नहीं करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम उन्हें कहते वो फौरन हुक्म की तामील में उसे बजा लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम में बहुत मोहब्बत थी। एक टीचर तालिब इल्म की मदद, रहनुमाई व मुआवनत करता है। एक टीचर बासलाहियत, तालीम याफ्ता, मुंतजिम, शफीक, मददगार, हौसला अफजा और जिम्मेदार होता है। या ये टीचर का फुल फॉर्म है ना। अब हमारे स्कूल में टीचर्स डे मनाने वाले हैं, मैं उस दिन यही सुनाऊंगा। यस, आफाक पुरजोश नजर आ रहा था। लेकिन अम्मी, टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? दफतन उसने पूछा। तुम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हो? आफाक ने नफी में गर्दन हिलाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आजाद भारत के दूसरे नायब सदर थे। इसके बाद वो दूसरे सदर भी मुंतखब हुए।
वो माहिर तालीम थे। उन्होंने तालीम और फलसफे के मैदान में हिंदुस्तान में कामयाबी के साथ काम किया और तालीम के मैदान में नुमायां फराइज अंजाम दिए। उन्हें कई नोबेल प्राइज भी मिले। जब वो सदर जमहूरिया थे, उस दौरान उनके कुछ स्टूडेंट्स और दोस्तों ने उनसे दरख्वास्त की कि उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यौम पैदाइश सेलिब्रेट करने की इजाज़त दी जाए। जवाबन उन्होंने लिखा कि मेरे यौम पैदाइश मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाया जाए तो मुझे ज़्यादा फ़ख्र होगा। उसके बाद से आज तक हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाते हैं। अच्छा अम्मी, मेरी क्लास में किसी को भी ये स्टोरी नहीं मालूम। मैं टीचर्स डे पर ये स्टोरी भी सुनाऊंगा। वेरी गुड। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, जैसे तुम्हारे असातिज़ा पढ़ाते हैं। असातिज़ा अक्ल व दानिश से अपना इल्म स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। आफाक, इस दुनिया में वालिदैन और असातिज़ा के अलावा और कोई नहीं जो पूरी मेहनत के साथ बच्चों की तरबियत करे। बच्चों की शख्सियत साजी और किरदार साजी में वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का भी किरदार होता है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने असातिज़ा के साथ अदब से पेश आए। बेटा, बड़ों का एहतराम हर हाल में लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जो छोटों से शफकत न करे और बड़ों का एहतराम व तौक़ीर न करे। ये बात हमेशा याद रखना आपा। ठीक है अम्मी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारते नहीं थे, हमारे टीचर्स मारते हैं। आफाक ने मुंह बसोर कर कहा। अम्मी को बेख्तियार एक शेर याद आया। कुछ वो खींचे खींचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। मौजूदा दौर में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कुछ यूं ही हो गया है। ओके, मैं तुम्हारे टीचर से बात करूंगी। चलो उठो, शाबाश, अब खाना खा लो। हाँ अम्मी, बहुत भूख लग रही है। मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आता हूँ और मुँह हाथ भी धो लेता हूँ। कहते हुए उठकर दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया। अम्मी की मुस्कुराती निगाहें उसका ताक़ुब कर रही थी। फिर उन्होंने सर झटक कर उसकी किताबें समेटना शुरू की। उस्ताद सिर्फ एक बच्चे का नहीं, सिर्फ एक क्लास का नहीं, सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि कौमों का मेमार होता है। असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को मारे नहीं, न बहुत ज्यादा डांटे, बल्कि उनके साथ नरमी से पेश आए। किसी पौधे को मोहब्बत से सेंचा जाए तो सिर्फ वो खुद मजबूत तनावर दरख्त नहीं बनता, बल्कि अपने साथ के दरख्तों की भी फलने फूलने में मदद करता है। मोहब्बत से गूंधा गया खमीर हमेशा खुशबूदार होता है। बच्चों की तरबियत की मिट्टी में बस प्यार की खाद शामिल कर ले, वो पायदारी का बाज बनता है। और शागिर्द भी उस्ताद का एहतराम, इज्जत व तौक़ीर और ताज़ीम व अदब करना सीख जाए तो ये औसाफ उसके लिए कामयाबी की राहें हमवार कर सकते हैं। क्योंकि अदब व एहतराम के बगैर इल्म तो हासिल हो सकता है, लेकिन फैज़ान इल्म नहीं। उस्ताद और शागिर्द अगर चाहें तो कौमों की हालत बदलने पर कुदरत रखते हैं। अम्मी सोच रही थी। हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।